हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 बुक्स एंड ऑथर्स फॉर द स्टैटिक जीके। और आप सबने बहुत सपोर्ट किया स्टैटिक जीके सीरीज़ को। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। थैंक यू फॉर द लाइक एंड सब्सक्रिप्शन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये जो चैप्टर है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टैटिक जीके के पार्ट्स हैं मैं एक एक करके उन सारे ही वीडियोज़ को कंप्लीट कर लूँगी बिफोर योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर बुक्स एंड ऑथर्स। Okay, so the first question is, name the author of The Incredible Adventure of Professor Shongo. Okay, this is the book The Incredible Adventure of Professor Shongo. हमें बताना है who is the author. The answer is Satyajit Ray. Okay, याद रखेंगे Satyajit Ray has written this book and Satyajit Ray was widely regarded as one of the greatest filmmaker of all time. ठीक है, तो ये एक फिल्म मेकर थे, ये भी याद रखेंगे। of all time, he was the greatest filmmaker and इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? पैथर पंचाली। पैथर पंचाली, that was in 1955. ओके, 1955 में, ठीक है। और इसे 11 इंटरनेशनल प्राइजेस मिले थे, ये भी याद रखेंगे। 11 इंटरनेशनल प्राइजेस दिस मूवी हैज गॉट. So, who has written the book The Incredible Adventure of Professor Shonko by Satyajit Ray. Okay. Okay. So you know the chapter name is Books and Authors. So obviously बात है, हमें ये सब चीज़ें बहुत remember करने की ज़रूरत है. The very famous name रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे भी related चीज़ें हम लोगों ने previous year questions में बहुत बार discuss किया है. He was also known by his pen name. Rabindranath Tagore's pen name was Bhanu सिंघा ठाकुर. भानु सिंघा ठाकुर, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. His compositions were by the two nations as national anthems. Okay, means his compositions were chosen by the two nations as national anthem. India's Jangan Man and Bangladesh, that was अमर शोंकार बांग्ला. आपको पता है कि इनके द्वारा जो लिखे हुए कॉम्पोजिशंस थे, जिसमें से एक जनगण मन हमारी इंडिया का है नेशनल एंथम, एंड फॉर बांग्लादेश इट्स अमर सोंकार बांग्ला. ओके, तो ये सब पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, दिस शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड. नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज. ये भी मैंने लास्ट वाले प्राइज एंड ऑनर्स में ये चैप्टर में डिस्कस किया है that Rabindranath Tagore was the first person to get the Nobel Prize for the literature in 1913 for the book Gitanjali. वहाँ पर कौन सी बुक थी? That was Gitanjali, for which Rabindranath Tagore has got the Nobel Prize. Okay? और भी जो नाम यहाँ दिए हुए हैं उनको भी आप इम्पोर्टेंट समझ के उनके भी बुक्स के नाम एक बार रिवाइज कर लेंगे. Let's move to the next question number 2. Who is the author of the book Lady Doctor? Lady Doctors, The Untold Stories of India's First Women in Medicine. India's First Women in Medicine, ये NTPC 2022 का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है because it is something related to women and the book is related to medicine. Lady Doctors, The Untold Story of the India's First Women in Medicine. The answer is कविता राव. इसका आंसर है कविता राव. याद रखेंगे, कविता राव इज द ऑथर ऑफ लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन. ओके, so who was she? She was an unearths the extraordinary stories of 6 women from 1860 to 1930. उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरीज को गैदर किया एक साथ फ्रॉम 1860 टू 1930. Stories of 6 women, sorry, not year. Stories of 6 women is there in this book from 1860 to 1930, who define the idea. जिसमें क्या डिफाइन किया गया है? The idea that they were unfit for medicine by virtue of their gender. Okay, this book recovers the stories of India's first women doctors, often ignored by history. ठीक है, so this is all in this book. You can just go through it. Remember, the first
वुमेन इन इंडिया मेडिसिन, डेली डॉक्टर, ये बुक लिखी गई थी कविता राव के थ्रू। ओके, आप और भी नाम यहाँ देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जयराम रमेश, इनकी वन ऑफ द बुक बाय जयराम रमेश, याद रखेंगे, वेरी फेमस, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई बुक जो कि बहुत ही फेमस है, लाइट ऑफ एशिया। वन बुक बाय कुणाल बासु, he has written the book of Calcutta, he was the author of Calcutta, Kalkatta, Calcutta. Okay, and by Anuradha Roy is Arundhati Roy, actually Arundhati, TI is missing here, Arundhati Roy, the very famous book, The Gods of Small Things, The Gods of Small Things। तो यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर कर लिया है, यू कैन रिमेंबर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, who was the author of The Lady Doctor, The Untold Stories of India's First Women in Medicine, कविता राव। अदर जो नेम्स हैं उनके भी फेमस बुक्स के नाम बता दिए मैंने, सो यू कैन रिमेंबर, लाइक कुणाल बासु हैज रिटन कलकत्ता, जयराम रमेश रिटन लाइट ऑफ एशिया, अनुरुद्धति Roy has written The God of Small Things. Arundhati Roy it is. Arundhati Roy written The God of Small Things. Let's move to next question number 3. Who wrote the novel The White Tiger? Okay, यहाँ पे हमें बताना है who wrote the novel The White Tiger. The White Tiger. So बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है ये भी, याद रखेंगे। द आंसर इज अरविंद अडीगा, फोर्थ ऑप्शन अरविंद अडीगा। ओके, Arvind Adika has written the novel The White Tiger. It is a novel by Indian author and it was published in 2008. याद रखेंगे ये भी कब publish हुआ था, 2008, and won the 40th Man Prize. Okay, it provides a darkly humorous perspective of India's class struggle in a globalized world as told through a retrospective narration from Balram Halwai, a village boy. Okay, so this book is like that, which tells about the India's class struggle in a globalized world. So The White Tiger is one of the important book written by Arvind Adiga. Question 4 पे आएंगे, who is the author of the Indian English novel Sita, Warrior of Mithila, published in 2017? Okay, so question 4, author of the Indian English novel Sita, Warrior of Mithila, published in 2017 बताना है हमें। ये ALP का क्वेश्चन है 2018 का। ओके, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अमीश त्रिपाठी। ओके, याद रखेंगे, द नॉवेल सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पब्लिश इन 2017 वाज रिटन बाय अमीश त्रिपाठी। ओके, और भी नाम जो दिए हुए हैं ऑप्शंस में, मैं उनके भी फेमस बुक्स के बारे में बता रही हूँ, आपको ये याद रखना है। और एक चीज़ की, ये दोनों ही क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, क्वेश्चन 4 and 5, सो जस्ट इग्नोर, द सेम क्वेश्चन इज हियर एंड द सेम नेम्स इन द ऑप्शंस ऑल्सो। ये अमरीश त्रिपाठी की सेकेंड बुक थी, ठीक है, ऑफ रामचंद्र सीरीज ऑफ अमरीश त्रिपाठी, पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई, दिस इज द सेकेंड बुक। ओके, द बुक इज बेस्ड ऑन द एपिक रामायण एंड द स्टोरी ऑफ द हिंदू गॉडेस सीता, बेसिकली इट इज टेलिंग अबाउट ऑल अबाउट द सीता। ओके, अब आते हैं रॉबिन शर्मा पे, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, द वेरी बेस्ट book by him was The Monk Who Sold His Ferrari. रॉबिन शर्मा, याद रखेंगे, The Monk Who Sold His Ferrari. Okay, राहुल मेहता, No Other Word, राहुल मेहता की बुक No Other Word,
बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं कवर कर रही हूँ, तो ऑप्शंस में भी जो नाम आ रहे हैं मैं उनके भी इम्पॉर्टेंट बुक्स बताते चल रही हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर सेम क्वेश्चन ना देखने को मिले, एटलीस्ट द ऑप्शंस विच आई एम टेलिंग यू वो मिले, तो यू कैन जस्ट कवर इट। नेक्स्ट इज चेतन भगत, बहुत बार सुना होगा, इस पर मूवी भी बन चुकी है, टू स्टेट्स। ओके, चेतन भगत, टू स्टेट्स, राहुल मेहता, नो अदर वर्ड, रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, और अमीश त्रिपाठी की दो नॉवल थी, रिटन ऑन सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला। Question 5 is the same repeated question. So let's move to question 6. Which of the following sports person wrote the autobiographical book Ace Against Odds? ठीक है, ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने लिखा है, तो हमें बताना है। ALP 2018 का क्वेश्चन है ये। स्पोर्ट्स पर्सन रोट ऑटोबायोग्राफिकल बुक एस अगेंस्ट ऑड्स। द आंसर इज सानिया मिर्जा। ओके, ऑप्शन 4, सानिया मिर्जा wrote the autobiographical book Ace Against Odds. ओके ओके, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स द पर्सन हु राइट्स हिज और हर स्टोरी बाय हिज ओन। ठीक है, जो अपनी कहानी खुद लिखता है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। सो इट्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो ऑप्शंस में दिए हुए हमारे पास, हाँ, इसके पब्लिशिंग ईयर भी याद रखेंगे। इसे कब पब्लिश किया गया था? 2016 में। ठीक है, द बुक हैज़ केम इन 2016. What about Saina Nehwal? Her any famous book? Saina Nehwal is an Indian shuttler and her autobiography is Playing to Win. Playing to Win, याद रखेंगे, Playing to Win, ये इनकी autobiography है. Okay, this is the story of Saina Nehwal. What about Anil Kumble? Anil Kumble is a retired Indian cricketer and he wrote the book Wide Angle. अनिल कुंबले की एक बुक है जिसका नाम है ओके, सो इट इज नॉट अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने जो बुक लिखी है दैट इज वाइड एंगल। ओके, याद रखेंगे। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। पहले तो आपको याद रखना है, द ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड्स इज रिटन बाय सानिया मिर्जा। फिर साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। ओके, अनिल कुंबले ने एक बुक लिखी है दैट इज वाइड एंगल, एंड जो सानिया मिर्जा की बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 2016। ठीक है, अब बच रहे हैं यहाँ पे कौन? युवराज सिंह। हाँ, युवराज सिंह की भी एक ऑटोबायोग्राफी है। आपको पता है, ही इज़ एन इंडियन क्रिकेटर एंड हिज ऑटोबायोग्राफी इज द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ठीक है, याद रखेंगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा नाम है, प्लस इसमें कैंसर वर्ड आ रहा है, जो ये आपको पता ही है, ही हैज़ बीन थ्रू दिस केस। सो आपको ये टोटल, ये काफ़ी बड़ा नाम है इनकी ऑटोबायोग्राफी का, तो आपको ईजिली याद भी रहेगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ओके, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो हमने चारों ऑप्शंस कवर कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखेंगे। द author of The Monk Who Sold His Ferrari is। ओके, तो ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से तो आप फेमिलियर हो ही चुके हैं, अभी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी इज़ द बुक रिटन बाय रॉबिन शर्मा। ये ALP 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी इज़ रिटन बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा इज़ वन ऑफ द टॉप 5 लीडरशिप एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड, and The Monk Who Sold His Ferrari is a renowned inspirational fiction book written by Robin Sharma. और भी बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं और रियल सक्सेस, ओवरकमिंग एडवर्सिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट, बिल्डिंग रिमार्केबल रिलेशनशिप्स, इम्पैक्ट एंड लेगेसी, एंड टू बी एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बीइंग। तो ये सारे बुक्स भी उन्हीं के हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनेंगे। रियल सक्सेस, the first book. Second, overcoming adversity and disappointment.
Third, building remarkable relationships. Fourth, impact and legacy. And fifth, to be an extraordinary human being. ठीक है? Next, let's move to question 8. Which celebrity is the author of the book An Unsuitable Boy? इस बुक के बारे में सुना होगा आपने, ये ALP 2018 का क्वेश्चन है. An Unsuitable Boy. This book is written by Karan Johar. Okay? An Unsuitable Boy. The book highlights the different events of his life starting from his childhood, and the book was published in English language on the 9th January 2017. Next, question number 9. R.K. Narayan is famous for his book. R.K. Narayan किस book के लिए बहुत famous है? The book is Malgudi Days. Okay? His famous book. R.K. Narayan's famous book is Malgudi Days. This book is a collection of 32 short stories. इसमें 32 short stories लिखी गई हैं. The short stories, and these short stories take place in Malgudi, a fictional town, and every story tells every story just tells about the general problem faced by the common man of India in that era. ठीक है, सारी जो स्टोरीज हैं वो एक जनरल प्रॉब्लम जो फेस करते हैं कॉमन पीपल, कॉमन मैन ऑफ इंडिया, उस पर बेस्ड है. ओके. And this book gained so much popularity that some of the stories were televisioned by Shankar Nag, director and actor. ठीक है. आर के नारायण की और भी जो अलग बुक्स थी वो कौन कौन सी थी? The very famous book was this. The other book was The Dark Room. Okay. The English Teacher, The Financial Expert, Swami and Friends. Okay. और ये जो बुक है द रूम ऑन द रूफ, इसे किसने लिखा था? दिस वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये भी याद रखेंगे, रस्किन बॉन्ड. द रूम ऑन द रूफ रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड. ओके. अ सुटेबल बॉय, ये जो है अ सुटेबल बॉय, दैट इज अ बुक रिटन बाय विक्रम सेठ. विक्रम सेठ. और अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एन अनसुटेबल बॉय. An Unsuitable Boy was written by Karan Johar, and this book, A Suitable Boy, was written by Vikram Seth. Next, question number 10 पे आएंगे. Who wrote the lyrical poem My Mother at 66? ठीक है, एक पोएम है, लिरिकल पोएम My Mother at 66. NTPC 2021 का क्वेश्चन है. किसने लिखा था? याद रखेंगे, कमला दास. Kamala Das wrote the lyrical poem My Mother at 66. Kamala Das was born in Malabar, Kerala in 1934, and she is recognized as one of the India's foremost poets. ठीक है? So it was the book. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example of that. Okay? याद रखेंगे. Next, question number 11. Name the writer of the book One Life is Not Enough. Question 11. One Life is Not Enough. Who is the writer of this book? Natwar Singh. Okay. One Life is Not Enough is an autobiography by the former Minister of External Affairs, Natwar Singh. So who was Natwar Singh? He was former Minister of External Affairs. ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे ये, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वन लाइफ इज नॉट इनफ. ओके. The book tells an account of his career as a politician and bureaucrat, about his encounters in the political corridors of Delhi, and sets other records straight on many cases, including the Volcker controversy and the removal of Sonia Gandhi as a candidate for Prime Minister. तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने इस बुक में कवर की है. सो याद रखेंगे, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नटवर सिंह. क्वेश्चन 12 पे आते हैं. Who among the following is the author of the novel Red Earth and Pouring Rain? Red Earth and Pouring Rain. It's a novel. NTPC 2022 का क्वेश्चन है, important.
The answer is Vikram Chandra. Okay, Vikram Chandra is the correct answer. This novel is written by Vikram Chandra, Red Earth and Pouring Rain. याद रखेंगे. This was his first novel. ये भी याद रखेंगे कि विक्रम चंद्रा की फर्स्ट नॉवल थी. And won 1996 कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज फॉर द बेस्ट फर्स्ट बुक. ठीक है. और इस बुक के लिए उन्हें कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज भी मिला है फॉर द बेस्ट फर्स्ट बुक के लिए. ठीक है. विक्रम चंद्रा. द बुक नॉवल इज रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन. व्हाट अबाउट सुकेतु मेहता? Suketu Mehta is a New York based author of the book Maximum City. Okay? Of the book Maximum City. याद रखेंगे. Suketu Mehta is a New York based author and the book is Maximum City. He was a finalist for the 2005 Pulitzer Prize. Arundhati Roy, again the very famous name. She is an Indian author, actress and political activist. She wrote the novel The God of Small Things. अभी हमने डिस्कस किया था in 1997 and won Booker Prize. इसके लिए उनको बुकर प्राइज भी मिला था. क्वेश्चन 13 पे आते हैं. Who is the author of To Kill a Mockingbird? इस बुक का ऑथर कौन है? To Kill a Mockingbird. The answer is Harper Lee. D ऑप्शन. डी कहाँ है? यहाँ पर है. So Harper Lee is the correct answer. Okay. Harper Lee, whose first novel To Kill a Mockingbird about racial injustice in a small Alabama town sold more than 40 million copies, died at the age of 89. Okay. So याद रखेंगे question 13. Harper Lee is the correct answer. क्या important points थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए. Now next. अच्छा, यहाँ पे और भी नेम्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. जैसे कि J.K. Rowling. ओके. J.K. Rowling is a British author and philanthropist. ठीक है. J.K. Rowling is a British author and she is also a philanthropist. She is best known for the writing Harry Potter fantasy series. याद रखेंगे J.K. Rowling has the book known as Harry Potter fantasy series. So she was a British author and philanthropist, British writer. Okay, so the second name is Salman Rushdie. ये means shortlisted for Booker Prize 5 times. ठीक है. Rushdie has been shortlisted for the Booker Prize 5 times. In 1981 for The Midnight Children. तो मैं सिर्फ easily उन 5 बुकों के नाम बता देती हूँ जिन 5 बुकों के लिए वो 5 बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए, मीन्स शॉर्टलिस्ट हुए. सो सलमान रश्दी बुक्स आर Midnight's Children, Shame, Satanic Verses, The Moor's Last Sigh and Quixote. ठीक है. इस तरीके के 5 बुक्स थे उनके. देन कम्स अम्बर्टो इको. इनकी बुक थी द नेम ऑफ द रोज. याद रखेंगे अम्बर्टो इको. द बुक्स वर द नेम ऑफ द रोज, द प्रेग्यू सिमेंट्री एंड नंबर 0. ये इनकी बुक्स थी. 3 बुक्स के नाम बताए मैंने इनके जो बहुत फेमस है. द नेम ऑफ द रोज, the Prague Cemetery and number 0. Okay, let's move to question 14 now. Name the celebrity who has authored Mrs. Funny Bones. ठीक है. Mrs. Funny Bones has been authored by whom? याद रखेंगे Twinkle Khanna. Twinkle Khanna is the author of the book Mrs. Funny Bones. She's just like you and a lot like me. Okay. This was the complete name of the book, Mrs. Funny Bones. She is just like you and a lot like me. Okay. और भी जो यहाँ पे नाम दिए हैं जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम बताती हूँ मैं. ट्विंकल खन्ना के और भी बहुत सारे बुक्स हैं, लाइक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद.
ओके, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद भी उनकी बुक है, ट्विंकल खन्ना की. पैजामाज आर फॉर गिविंग. ओके, पैजामाज आर फॉर गिविंग, ये भी इनकी बुक है. और वन ऑफ द मीन्स अगर हम विमेंस की बात करें, सेलिब्रिटीज़ की बात करें, तो इसी तरीके से एक बहुत ही पॉपुलर नेम है सुधा मूर्ति. उनकी भी बुक्स के बारे में आप पढ़ लेंगे. लाइक हर वेरी बेस्ट बुक्स आर द सर्पेंट्स रिवेंज, द बर्ड विद द गोल्डन विंग्स, वाइज एंड अदरवाइज. ओके, तो अभी मैंने सुधा मूर्ति की इम्पोर्टेंट बुक्स बताई. एक और इम्पॉर्टेंट बुक क्या थी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज. ट्विंकल खन्ना की बुक्स मिसेस फनी बोन्स, पैजामाज आर फॉर गिविंग, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद. किरण देसाई ने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. एंड अरुंधति रॉय की बुक तो हमने पढ़ी अभी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ हर इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 15. The science fiction book, The Extraterrestrial Delivery, is penned by which Indian author? The Extraterrestrial Delivery. ये जो बुक है ये किसने लिखी है? So this is by Sudipta Das. याद रखेंगे, very important. Sudipta Das has written the science fiction book, The Extraterrestrial Delivery. Okay. This book was nominated for the International Dublin Literacy Award 2018. फिर और भी जो यहाँ पे नाम हमें दिख रहे हैं, जैसे कि नमिता गोखले. सो नमिता गोखले इज़ एन इंडियन राइटर एंड पब्लिशर. हर लेटेस्ट नॉवल इज जयपुर जर्नल्स. याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं. जयपुर जर्नल्स इनकी लेटेस्ट बुक है, नॉवल है, जयपुर जर्नल्स. ठीक है, ये 2020 में पब्लिश हुई है. द अदर इम्पॉर्टेंट नेम इज़ अनोश ईरानी. So Anosh Irani is a famous Indo-Canadian novelist and playwright. Some of his famous novels include The Cripples and his Talismans. The Cripples and his Talismans. Okay. Samit Basu is an Indian writer and filmmaker. Some of his famous work include Turbulence. ठीक है, इनकी एक बुक है that is Turbulence. तो ये याद रखेंगे. एंड हिज लेटेस्ट नॉवेल इज चूजन स्पिरिट, जो मई 2020 में रिलीज हुई है. चूजन स्पिरिट एक नॉवेल आई है इनकी, चोजन स्पिरिट, ये भी याद रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे. यहाँ पर आज हमें कवर करना है टोटल 20 क्वेश्चंस. ठीक है, सो क्वेश्चन 16 इज विक्रम सेठ इज बेस्ट नोन फॉर हिज पोएम. ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन पोएम्स में से विक्रम सेठ की कौन सी एक पॉपुलर पोएम है? तो आई थिंक सबने पढ़ी है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. ALP 2019 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे. द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इज बेस्ट नोन फॉर हिज पोएम विक्रम सेठ. ही हैज़ रिटन इट इन 1994 में लिखा था उन्होंने. एंड इट इज़ अ फेबल अबाउट अ फ्रॉग एंड अ नाइटिंगेल. ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है हाउ अ फ्रॉग एक्सप्लॉइट्स अ नाइटिंगेल to earn the money. It shows that how the bad training given by the frog causes the death to the nightingale. ठीक है, ये इस तरीके की फेबल स्टोरी है और एक अच्छी पोएम है बाय द विक्रम सेठ. याद रखेंगे. इन विच ईयर इट हैज़ बीन फॉर्म? 1994, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. नेक्स्ट, दिस इज लोन फॉक्स डांसिंग. याद रखेंगे, दिस इज बाय रस्किन बॉन्ड. ठीक है, रस्किन बॉन्ड की है लोन फॉक्स डांसिंग. फादर रिटर्निंग होम इज बाय दिलीप चित्रे. एंटरप्राइज द फर्स्ट एडवेंचर, इसका पूरा नाम है एंटरप्राइज द फर्स्ट एडवेंचर. इट वाज बाय वोंडा, सॉरी नॉट वोडना, इट्स वोंडा. इसकी कंप्लीट नाम क्या बताया मैंने? एंटरप्राइज द फर्स्ट एडवेंचर बाय वोंडा एन मैकलाइंटर. ओके,
Next, question number 17. Who is the author of the book Shades of Saffron? Shades of Saffron is the book written by सबा नाकवी. ठीक है, सबा नाकवी. It's from Vajpayee to Modi by Sada Naqvi provides a ringside view of the भारतीय जनता पार्टी. ठीक है, ये इस बुक में बताया गया है, from Vajpayee to Modi. Okay. So the book exposes fascinating facts about the Vajpayee administration's inner working. When she writes about the interpersonal relationship of the key actors like Vajpayee, L.K. Advani, Govindacharya, Pramod Mahajan and other BJP leaders, it is self-evident that the author had direct access to everyone who mattered at that time. Okay, so this was written by her, Sabha Naqvi, Shades of Saffron. Question 18. Which economist has written the book The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936? याद कर रखेंगे, it is written by John Maynard Keynes. Okay, John Maynard Keynes has written the book General Theory of Employment, Interest, Money, 1936. Okay, Adam Smith, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं या फिर फादर ऑफ कैपिटलिज्म, इनकी 2 बुक्स थी, 2 classic business units. He has written 2 classic business units, The Theory of Mortal Sentiments and The Wealth of Nations. याद रखेंगे, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर फादर ऑफ कैपिटलिज्म. ही रोट 2 classic business units. याद रखेंगे, 2 कौन से classic business units है? फर्स्ट द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स एंड द सेकेंड वेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है, एंड the other names here. Okay, Capitalism and Freedom are rightly recorded as one of the most popular Milton Friedman books. It's Milton, yeah, I missing है. Milton Friedman की book Capitalism and Freedom are rightfully regarded as most of the popular for Milton Friedman books. Okay, and more about, याद रखेंगे, जॉन मेनार्ड कीन्स इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. जॉन मेनार्ड कीन्स को हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. ओके, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म, and his 2 classic business units were The Theory of Moral Sentiments and The Wealth of Nations. And Milton Friedman is for the Capitalism and Freedom, are rightfully regarded as one of the most popular Milton Friedman's books. Next, question number 19 पे आते हैं. Question 19. Who is the author of the book Straight Drive? Straight Drive के राइटर कौन थे? So that is, in this book, Gavaskar tells about the great players of the years and his heroes that include M.L. Jayasimha and Bond Ratman. So the answer is Sunil Gavaskar. ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है? सुनील गवास्कर ने. The Straight Drive written by Sunil Gavaskar. Next, question number 20, for the last question for today. Which Indian CM wrote her autobiography titled My Unforgettable Memories? ठीक है, किसी CM की ऑटोबायोग्राफी है ये, his or her, My Unforgettable Memories. बताना है. The answer is CM of West Bengal, Mamata Banerjee. Option C. CM of West Bengal, Mamata Banerjee wrote out her autobiography titled My Unforgettable Memories. The autobiography is an account of the personal and political journey of her. ठीक है, so Mamata Banerjee is the 8th and current CM of West Bengal. She is the founder and chairperson of the Trinamool Congress, TMC. TMC की फाउंडर हैं ये. याद रखेंगे, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाँ, एक क्वेश्चन 19 में मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिए हैं. दीज आर द क्रिकेटर्स
तो इनसे रिलेटेड बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बताया, सुनील गावस्कर हैज़ ऑथर द बुक स्ट्रेट ड्राइव. इन द सेम वे कपिल देव की भी बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्रिकेट माई स्टाइल. क्रिकेट माई स्टाइल इनकी बुक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट बुक वॉज बाय गॉड्स डिग्री. बाय गॉड्स डिग्री. Okay, this is also important book of his. Prakash Padukone, his important book was Touch Play. Okay, Touch Play, important book. And the next was the Prakash Padukone story. The Prakash Padukone स्टोरी, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. ये सब एक प्लेयर्स हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, तो उनके बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. विश्वनाथन आनंद, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस. आपको पता ही है इनका नाम चेस से जुड़ा है. सो द बुक इज माई बेस्ट गेम ऑफ चेस. एंड द नेक्स्ट बुक वेरी पॉपुलर, माई करियर. ओके, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस एंड माई करियर. ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम मैंने बता दिए हैं. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ का, जहाँ पे हम बुक्स एंड ऑथर्स कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी. सो just keep supporting. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.